Hello friends, in acid, base and salts chapter, today we will see acidity and basicity of a substances and concentration of a solution. Students, in your book, such a type of table is given and you have to complete this table. So here दो तीन examples मैंने यहाँ पे solve करके दिए हैं, but it's a very easy and you can complete it easily. So here देखो यहाँ पे acid number of H plus ions obtained from one molecule. So here HCl. So how many H plus ions are possible for this HCl? 1. यहाँ पे सिर्फ H का एक ही आयन पॉसिबल है. Similarly here also H is there in that molecular formula. H is there. HNO3 में सिर्फ एक ही H है, so here we can write easily 1. Similarly here means the H2SO4 H2 लिखा है, means there are 2 H plus ions are possible. So here 2 यहाँ पे लिखा है. Okay, so in this way you can complete that table easily. Similarly next बेस के लिए भी आपको ये टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा है वहां पे. तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे देखो जैसे हमने H प्लस के लिए किया है वैसे ही यहाँ पे OH, हाउ मेनी OH ions are here? 1. In KOH also only 1. But in this case means the calcium hydroxide 2 OH minus ions are there. That's why here 2 is here written. Okay, बहुत ही सिंपल है. जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस आर्टिकल, ये टेबल आपको कंप्लीट करने के लिए कहा है, बाकी कुछ नहीं है. सो नेक्स्ट here means the we can do classification of acids and bases on the basis of another concept, that is basicity and acidity concept. Students, last lecture में हमने देखा है classification of acids and bases, and in that lecture we have seen means the acids and bases are classified in another way. तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, मतलब जब पानी में डालने के बाद वो डिसोसिएट होते हैं, आफ्टरवर्ड मींस द विच रेडिकल्स बिकम्स फ्री. सो अकॉर्डिंग टू दैट एसिड्स एंड बेसेस आर क्लासिफाइड. बट इन दिस केस मींस इन दिस आर्टिकल हियर वी हैव टू सी acids and bases are also classified according to their basicity and acidity. So what is the meaning of basicity and acidity? वो अभी हम एक देख लेते हैं. So basicity of acid means look here, the number of H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity. मतलब एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन. तो जस्ट हमने अभी वो टेबल में जो देखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के बाद वहां पे हाउ मेनी H प्लस आयंस आर देयर. सो हियर मी सेम नंबर ऑफ आयंस कैन बी ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल, वहां पे वन मॉलिक्यूल आपको ध्यान में रखना है. वन मॉलिक्यूल डिसॉल्व करने के बाद कितने H प्लस आयंस फ्री होते हैं? सो डिपेंड्स ऑन दैट इज द वी कैन क्लासिफाई एसिड्स एंड बेसिस. तो यहाँ पे is the once again look here this definition, the number of H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity. Okay, समझ में आया आपको? Similarly you can write easily definition of एसिडिटी ऑफ बेसिस. तो आप कौन सा डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो? एसिडिटी ऑफ बेसिस. तो वहां पे क्या रहेगा? यस करेक्ट, इंस्टेड ऑफ H प्लस आयन वहां पे कौन से आयन्स रहेंगे? OH माइनस. मतलब बेस का एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व करने के बाद कितने आयन्स फ्री होते हैं? OH माइनस आयन्स कितने फ्री होते हैं? सो डिपेंड्स ऑन दैट देयर विल बी अ एसिडिटी ऑफ बेसिस. तो वो डेफिनेशन एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं. एसिडिटी ऑफ बेसिस, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑब्टेनेबल by the
dissociation of one molecule of a base is called its acidity. तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, वन मॉलिक्यूल dissolved inside the water or whatever may be the solvent, in that solvent after dissolving one molecule, how many H plus ions or how many OH minus ions are obtained. So depends on that there is a basicity or acidity of that substance. Okay, now next part, concentration of acids and bases. So here to understand this concept, concentration of acid and base का सब concentration, ये concept समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए कहा है. मतलब आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, आप वो घर पे इजीली फॉलो कर सकते हो. So here in that activity 2 beakers are taken and take 1 lemon juice. ये जो 2 बीकर आपको लेने हैं और वो बीकर कैसे चाहिए, सेम चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग बीकर चाहिए और वो सेम चाहिए. मीन्स द 2 सिमिलर बीकर्स आर टेकन एंड टेक 1 लेमन. सो हियर कट दिस लेमन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उस लेमन को आपको 2 सेम पार्ट में कट करना है. आफ्टरवर्ड टेक द जूस ऑफ ईच पार्ट इनटू 2 सेपरेट बीकर्स. वो जूस को आपको यहाँ पे सेपरेट बीकर में डालना है. मीन्स 2 पार्ट्स ऑफ लेमन एंड 1 पार्ट जूस poured inside the beaker A and सेकंड लेमन का जो सेकंड पार्ट है उसका जो जूस रहेगा वो सेकंड बीकर में आपको यहाँ पे पोर करना है. आफ्टरवर्ड हियर इज द पोर 10 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन 1 बीकर. तो आपको क्या करना है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर है, वो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे फर्स्ट बीकर में डालना है. एंड हाउ मच इज द क्वांटिटी, दैट इज 10 ml. सेकंड सिमिलरली पोर 20 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. 20 ml ड्रिंकिंग वाटर आपको सेकंड बीकर में डालना है. ओके, स्टर द सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन को अच्छी तरह से स्टर कर लेना है. एंड आफ्टरवर्ड मीन्स द after completely dissolving that lemon juice means the take a taste of that solution. So observation क्या रहेगा, अगर आप दोनों solutions को टेस्ट करेंगे तो कैसा ऑब्जर्वेशन रहेगा, the taste of solution is different in both beakers. तो आपको ये जरूर दिखाई देगा कि दोनों बीकर में जो सॉल्यूशन है वो दोनों का टेस्ट अलग अलग है. मीन्स द दो आपने सेम लेमन जूस ऐड करने के बाद भी क्या हुआ, मतलब ये जो जूस का मतलब जो सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो अलग आपको फाइंड मिलेगा. नाउ फॉर दिस मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट हियर इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. अभी आपको यहाँ पे सोल्यूट का मतलब जो आपने लेमन जूस ऐड किया है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये जो लेमन जूस ऐड किया है उसको क्या कहेंगे हम, सोल्यूट कहेंगे. एंड सॉल्वेंट मतलब वाटर, जिसमें डिजोल्व किया है वो सोल्यूट, दैट इज सॉल्वेंट. मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट is same in both the solution but quantity of solvent is different. तो टेस्ट अलग आने का रीजन क्या है, सॉल्वेंट इज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डिफरेंट बट दो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज सेम. सो हियर अगर हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, मीन्स द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज डिफरेंट. वो रेशियो कैसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा, हर बीकर में वो डिफरेंट रहेगा. मीन्स फर्स्ट बीकर में यहाँ पे अगर समझो रेशियो रहेगा 2/10 एंड सेकंड बीकर में 2/20. मतलब अगर समझो ये जो लेमन जूस का क्वांटिटी अगर समझो हम 2 ml अगर कंसिडर करेंगे तो 2/10 दैट इज 0.2 आएगा और सेकंड बीकर में 0.1 आएगा. मीन्स in first beaker the ratio is larger and in second beaker ratio is small. Okay, now from all this explanation here we can write some conclusions. तो हम
कुछ कंक्लूजन्स लिख सकते हैं। कौन सा भी फूड स्टफ का टेस्ट कौन से किस पे डिपेंड रहता है वो हमको अभी देखना है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द टेस्ट गिविंग इंग्रेडिएंट, मतलब कौन सा भी जो इंग्रेडिएंट रहेगा, मतलब जो अभी हमने लेमन देखा वैसे सिमिलर टू दैट, अगर इंस्टेड ऑफ लेमन समझो कोकम है या कौन सा भी अदर शुगर है, जो भी इंग्रेडिएंट है, तो उसका नेचुरल टेस्ट कैसा है उसके ऊपर फूड स्टफ का टेस्ट डिपेंड रहता है। सिमिलरली प्रोपोर्शन, तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट, तो सेकंड क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जिसमें हम वो डिजोल्व करने वाले हैं दैट इज द सॉल्वेंट, और जो डिजोल्व करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूट, तो ये दोनों का कितना प्रोपोर्शन है उसके ऊपर ये पूरे फूड स्टफ का टेस्ट डिपेंड रहता है। समझ में आया आपको? इज द यू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स, नेचर ऑफ एनी फूड स्टफ डिपेंड्स ऑन दिस two things, that is the nature of the natural taste of that substance or that of the ingredient and proportion of solute and solvent in a food stuff. Means here now एक्चुअल टॉपिक अभी हमको देखना है, इसके लिए हम ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। मीन्स द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अभी हम डिफरेंट सॉल्यूशन जो देखने वाले H2SO4 है, HCl या डिफरेंट सॉल्यूशन जो है, सो इन द फॉर दिस सॉल्यूशन आल्सो सेम concept is applied, that is the means the taste similarly all the properties of solution depends on nature of solute and solvent, जो natural और that of the nature of that solute and solvent कैसा है उसके ऊपर, and second proportion, that is the important, मतलब nature and proportion, in short आप लोग ये nature point and proportion point ऐसे ध्यान में रख सकते हो, मतलब आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो। नेचर किसका नेचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर, एंड प्रोपोर्शन किसका प्रोपोर्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो कंप्लीट, मतलब आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्वेंट व्हाटएवर मे बी द फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। तो ये समझ में आया। तो आफ्टरवर्ड हियर वी विल सी द another concept, means the concept based on previous articles, that is the concentrated solution and dilute solution. स्टूडेंट्स आप जब भी केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स के बॉटल दिखाई देंगे, एंड इन दैट केस आपने ऐसे बॉटल्स देखे रहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड अनदर HNO3, मतलब आप लोगों ने वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट ये वर्ड्स जरूर पढ़े रहेंगे। सो हाउ इज दैट, सो दैट इज दैट वी हैव टू सी नाउ, is that the proportion of solute in the solution is called the concentration of the solute in the solution. अभी concentration of any solution, मतलब concentration of sulfuric acid समझो, तो ये proportion जो है solute in the solution is called concentration of the solute in the solution. मतलब यहाँ पे अलग सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, when concentration of solute in the solution is high. तो अभी हमने देखा है जैसे लेमन जूस का हमने देखा, लेमन जूस अगर उस टाइम सेम डाला था, बट समझो is the same quantity of solvent is there, but the समझो solute means the concentration of solute in the solution is high, then it is called concentration or concentrated solution. Once again look this definition, when concentration of a solute in the solution is high, then it is called concentrated solution. Similarly dilute का definition क्या रहेगा, dilute solution का यहाँ पे जैसा definition वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, low word रहेगा, means here when concentration of a solute in the solution is low, तो यहाँ पे high था, यहाँ पे अगर low रहेगा तो क्या रहेगा, dilute solution. So that solution is called as the dilute solution. Okay, तो आप लोगों को मुझे लगता है वो समझ में आ गया रहेगा. Now here last part of this
lecture is that is the units of concentration of solution. Actually next part में हम example solve करने ही वाले हैं concentration के, but just here to get idea, here we will see this in short and in next lecture again we will revise it. So units of concentration of solution, जो अभी हमने concentration के बारे में देखा वही उसकी units, मतलब how much is the concentrated that solution. So to find out it means there is a unit. So first unit है gram per liter, means the mass solute, the mass of a solute in gram dissolved in 1 liter of the solution is the gram mass of a solute. मतलब अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है ना लेमन का, लेमन जूस या सल्फ्यूरिक एसिड अगर वाटर में डालते हो तो हाउ मच इज द मास ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइड इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में वो मास डालने के मतलब वो जो सॉल्यूट डालने के बाद how much is that is called as the gram per liter. नेक्स्ट है मोलरिटी, सेकंड यूनिट है मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट dissolved in 1 liter of the solution. So instead of mass here is a mole. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, मीन्स द यहाँ पे मास ऑफ ए सोल्यूट है लेकिन यहाँ पे मोल्स ऑफ द सोल्यूट. ओके, मीन्स द मोलरिटी इज ऑफ ए सोल्यूट is expressed by writing molecular formula inside the स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे हमने यहाँ पे ग्राम पर लीटर लिखा है वैसे ही हम मोलरिटी कैसे लिखेंगे, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट अगर हमने HCl लिखा, सो दैट इज द टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी. तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं. सो हियर फॉर एग्जाम्पल NaCl इज द इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे NaCl लिखा है, इट इज इक्वल टू 1, मीन्स मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 1 m और 1 मोलर, उसको ही क्या कह सकते हैं, मोलर, 1 मोलर. ओके, तो ये सब आप ध्यान में रखो एंड यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब एग्जाम्पल्स देखने ही वाले हैं. तो ये टॉपिक के पे ऊपर जो एग्जाम्पल्स आते हैं आपको एग्जाम में वो सब हम सॉल्व करेंगे और उस टाइम फिर से एक बार ये टॉपिक रिवाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.